Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all our participants from all the regions, Lahore, Karachi, Islamabad and Peshawar. We welcome you to our another interesting and informative webinar, which is on Agile Project Management for Engineers, another interesting area of expertise for our professionals. And for this, we would be having, we have a very renowned certified PMP trainer, Mr. Noman Arshad, with us. So I welcome you to our NESPAC platform. Thank you so much for agreeing and for giving us your valuable time and to share your knowledge with us. About Sir Noman Arshad, a brief introduction that he's a certified PMP, RMP, ACP, senior training consultant and author of the various fields, PMI, ACC, ISO, and Exilos. Noman Arshad, having like 10 years of training, design, and delivery experience in waterfall, agile project management, and professional development across various industries in Australia, UAE, and South Asia. And other than that, he also has he has done as a practical project management experience of 8 years in the field of telecommunication, oil and gas, real estate infrastructure in Middle East and Asia. And other than this, he's also an author of the books focused on choosing the right project management standard for projects. And he has been serving in various fields in UK and Australia in various international universities. Sir, thank you so much for being with us. Now I request you to please proceed with the session. Thank you and good luck. Thank you very much, ma'am, for the generous introduction. And thank you very much for providing me this platform to share my expertise with very respected colleagues and very senior people, specifically engineers. So, मेरा brief introduction तो मैम ने कराया है, ठीक है. I would like to add some of the things. Basically, I'm an engineer, electrical engineer, and I'm having master's degree in engineering project management. And in addition to this, I've been serving in industry just in Dubai and as well as in Pakistan. And I was mostly involved in project management, different functions like procurement, project planning, and project controls. I've been into trainings, project management trainings for more than 10 years. I've done a few certifications from Project Management Institute USA, जो कि एक international project management की body है, ठीक है. You may have heard about this project management body, Project Management Institute USA. So this is my brief introduction. So I've been into practice as well as into consultation and trainings of the project management. So आज उसी तरह से जो हम थोड़ा सा discuss करेंगे, that is related to emerging trends in project management basically, के which is agile project management for engineers. ठीक है, project management आप most of the time जो है वो you know about it. So there is a new thing which is widely being accepted, which is known as agile project management. तो हम इसको जो है ना थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. In the meantime, I would like to ask कि अगर like आप में से कोई भी क्वेश्चन करना चाहे during, I want this session to be interactive basically. ऐसा नहीं है कि I'm just talking और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको जो है ना वो पूछ नहीं रहे हैं, ठीक है. So if you have any question or any feedback while I'm delivering, so you can raise your hand or you can ask your question, just open your mic. So उससे ये होगा कि session would be interactive and there would be better learning experience as per my experience, ठीक है. आप जो है ना वो अगर during the session अगर कोई क्वेश्चन करें तो उससे जो है ना वो इंटरेक्शन जो है ना वो काफी इंक्रीज होता है. तो हम स्टार्ट करते हैं विद ब्रीफ. अच्छा, बेसिकली हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड के ऊपर जाएंगे बेसिकली कि प्रोजेक्ट होता क्या है, ठीक है. व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट और हम प्रोजेक्ट्स क्यों करते हैं, ठीक है. फिर हमारे पास जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो मॉडल्स हैं वो क्या हैं, एंड आफ्टर दिस
जो हमारे पास जो इमर्जिंग एक ट्रेंड है जिसको हमने अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोला, ठीक है, व्हाट इज दैट एंड व्हाई डू वी नीड अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। फिर उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ क्या हैं, और जो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो डिफरेंट डोमेन्स हैं उसके अंदर ट्रेडिशनल वर्सेस अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरह से डिफर कर जाती है। तो ये हमारा जो है ना एक एजेंडा पॉइंट है जिसको जो है हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक। Basically, we know what is a project. Project according to the there are different definitions, but जो सबसे ज़्यादा एक accepted definition है जिसको सबसे ज़्यादा जो है वो बोला जाता है वो यही है कि it's an endeavor, it's a temporary endeavor, ठीक है। एक endeavor होती है जिसका एक specific start और एक specific end होता है, ठीक है। specific start और specific end। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है इट इज 2 years और 3 years और 4 years, ठीक है। सो इट हैज अ स्पेसिफिक स्टार्ट as well as it has some specific end. Then it project must be something, ठीक है, which produces unique deliverable, ठीक है, जिसके कोई unique output हो, ठीक है। लाइक आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, you construct the building or you construct the road, या आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है, which was not there before and it is something unique and new, तो उसको जो है ना आप प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है। देन उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक बजट होता है, ठीक है। उस बजट के अंदर जो है हमने उसको जो है ना वो डिलीवर करना होता है। फॉर एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट का जो है वो 10 बिलियन बजट है। एंड द फोर्थ डायमेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज बेसिकली द क्वालिटी, ठीक है। और क्वालिटी को हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि आप बेसिकली व्हेनेवर वी डू प्रोजेक्ट वी डू इट फॉर सम क्लाइंट, ठीक है। और हमने जो है ना वो क्लाइंट की जो हमारा क्लाइंट है जो हमारा स्टेक होल्डर भी है उसकी एक्सपेक्टेशंस को हमने जो है ना वो फुलफिल करना है। ओके, सो these are the four basic criterias जो कि होने चाहिए in order to define the project। सबसे पहले उसके अंदर जो है ना वो टाइम बाउंड होगा, ठीक है। उसकी जो आउटपुट है, जो डिलीवरेबल है, जो आउटकम है, दैट वुड बी यूनिक, ठीक है। उसका बजट जो है वो यूनिक, मतलब एक स्पेसिफिक बजट होगा। एंड देन यू नीड टू एडहेयर टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। दिस इज हाउ वी डिफाइन प्रोजेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, आप कोई भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं अगर कोई वो आइटरेटिव भी है या उसकी जो आउटपुट है वो यूनिक नहीं है, या वो टाइम बाउंड नहीं है, तो उसको भी जो है इंटरचेंजेबली प्रोजेक्ट ही बोल रहे होते हैं, बट दिस इज नॉट द केस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यूएसए डेफिनेशन, ठीक है, प्रोजेक्ट का एक स्पेसिफिक स्टार्ट होना चाहिए, एंड होना चाहिए, ठीक है। दैट शुड प्रोड्यूस समथिंग न्यू, ठीक है। यहाँ से आप ये भी देख लेंगे प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू इनोवेशन, ठीक है ना। यू हैव टू डेवलप समथिंग न्यू, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, एंड देन उसके अंदर जो है वो क्वालिटी होती है। एंड इन्हीं जो चार हमारे पास ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट की डेफिनेशन की, इनको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्स्ट्रेंट भी बोलते हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स या ट्रिपल कॉन्स्ट्रेंट्स ट्राइएंगल, ये भी आपने सुना हुआ होगा, ठीक है, कि मतलब जो है ना ट्रिपल कॉन्स्ट्रेंट्स, मैं यहाँ पे इसको लिख भी रहा हूँ, ठीक है। ट्रिपल ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, मतलब कॉस्ट, स्कोप एंड टाइम, ठीक है। तो इस ना ट्रिपल कॉन्स्टेंट्स ट्रायंगल भी इसको बोलते हैं, जो नीचे बना होगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके जी, नेक्स्ट व्हेन वी मूव, तो नेक्स्ट हम इस स्लाइड में ये देखेंगे कि बेसिकली व्हाई प्रोजेक्ट्स आर इनिशिएटेड, ठीक है, प्रोजेक्ट्स क्यों किए जाते हैं, ठीक है, और इसकी इकोनॉमिक वर्थ क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, 1/5 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी स्पेंट ऑन द प्रोजेक्ट्स, ठीक है। 1/5 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, इट्स अ ह्यूज यू नो नंबर, ठीक है। 1/5 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। और हमारे पास प्रोजेक्ट की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। Mostly my target audience being with engineering background, we have projects almost in different domains, ठीक है ना, मुख्तलिफ domains के अंदर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट्स की नीड ऑर्गेनाइजेशनल नीड हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीएमओ एस्टैब्लिश करना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, ठीक है। सो दैट इज आल्सो अ प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका भी कोई स्पेसिफिक स्टार्ट होगा, एंड होगा, कुछ रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। और इसकी जो एंड जो डिलीवरेबल होगा वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, उसकी that will be the project management office, ठीक है। इसके अलावा we can also initiate project because of market demand, ठीक है। मार्केट में कोई डिमांड है किसी चीज़ की, ठीक है,
so we need fuel efficient cars for example, ठीक है. तो because of market demand, ठीक है, जो है ना प्रोजेक्ट्स इनिशिएट हो सकते हैं. देन बिकॉज ऑफ कस्टमर रिक्वेस्ट, ठीक है, लाइक आपने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है या हाई राइज बिल्डिंग बनानी है लाइक दिस थिंग, तो बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट जो हम क्लाइंट और कस्टमर का जो रिलेशनशिप पहले डिस्कस कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट, ठीक है, कस्टमर आस्क यू टू डू समथिंग, ठीक है, टू डेवलप समथिंग, ठीक है, that may also result in initiation of project. And then if there is some technological advancement, तो उसके इवज भी जो है हमारे पास जो है ना वो प्रोजेक्ट इनिशिएट हो सकते हैं, ठीक है. सो प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने का जो है वो देयर आर डिफरेंट स्टांसेस, ठीक है. एस्टैब्लिशिंग पीएमओस, फ्यूल एफिशिएंट कार्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स, दीस आर फ्यू एग्जांपल्स. मतलब इसमें ये है कि थोड़ा सा आप जस्ट टू वाइडन योर होराइजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि इट्स नॉट प्रोजेक्ट सिर्फ कंस्ट्रक्शन में या सिविल इंजीनियरिंग में नहीं है, बल्कि दे हैव द if we are going to define design something new, ठीक है, और जिसका कोई स्पेसिफिक स्टार्ट और स्पेसिफिक एंड है, उसका कोई बजट है और उसके कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जिनको हमने सेटिस्फाई करना है, तो वो जो है ना वो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन में आता है. और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये देखा कि इट्स ऑलमोस्ट 1/5 of world GDP is spent on the projects. Okay. So this is basic. अच्छा, अब हमने थोड़ा सा ये देखना है, ये this slide is a little bit important for us because here we're going to differ between the two types of project management. हमारे इसमें थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊंगा कि हमारे पास जो है वो there are different ways to manage the projects, ठीक है. सबसे पहले हमारे पास एक वाटरफॉल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच होती है, ठीक है, एंड देन वी हैव अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच. मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, हम इन दो अप्रोचेस को डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप क्लैरिटी, ठीक है. अगर आपके पास लेट्स सपोज आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप किसी रोड की कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं या आप वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द हाई राइज बिल्डिंग, ठीक है. उसमें अगर तो आपके पास प्रोजेक्ट का स्कोप क्लियर है, लाइक यू नो व्हाट यू हैव टू डू, ओके, आपने किस सीक्वेंसिंग में क्या काम करना है, उसकी पूरी प्लानिंग अगर आप उसको डिटर्मिनिस्टिक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर जो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अप्रोच यूज करते हैं उसको हम वाटरफॉल अप्रोच बोलते हैं, ठीक है. इसके अंदर आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं बेसिकली. in waterfall project management we develop the WBS, ठीक है. You may have been implementing these on your projects, ठीक है. आप सबसे पहले उसका स्कोप डिफाइन करते हैं, ठीक है. आप उसका मतलब व्हाट वर्क यू विल डू, दैट इज नॉन अ स्कोप. आप ये डिफाइन करते हैं कि बेसिकली व्हाट इज द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है. और फिर आप उस स्कोप को ब्रेक करके यू डिफाइन एक्टिविटीज़, ठीक है. एक्टिविटीज़ के बाद आप उनकी सीक्वेंसिंग वगैरह करते हैं, ठीक है. सीक्वेंसिंग के बाद आप जो है वो उसकी यू डू द क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है. आपके पास क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, ठीक है, विच टेल्स यू कि प्रोजेक्ट की जो है ना वो ड्यूरेशन कितनी होगी, ठीक है. आप उसकी बजटिंग करते हैं. दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू नो द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट. जब आपको प्रोजेक्ट के स्कोप के बारे में पता होता है, only then you can use this approach which is the waterfall approach. आप यहाँ पर स्लाइड में भी देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो वाटरफॉल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिक्स्ड है, मींस स्कोप इज फिक्स्ड, रिक्वायरमेंट्स आर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना. क्योंकि हम प्रोजेक्ट किसी कस्टमर के लिए कर रहे हैं, जैसे हमने पिछली स्लाइड के अंदर भी डिस्कस किया, तो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर फिक्स्ड और स्कोप इज डिटर्मिनिस्टिक. सो वी कैन यूज वाटरफॉल अप्रोच, ठीक है. और उस फिक्स्ड स्कोप के हिसाब से हम जो रिसोर्सेज हैं उसके, ठीक है, कि उसके ऊपर कितनी कॉस्ट लगेगी, कितने रिसोर्सेज लगेंगे और कितना टाइम लगेगा, वो एस्टिमेट दिस थिंग बेस्ड ऑन फिक्स्ड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है. तो इस अप्रोच को हम वाटरफॉल अप्रोच बोलते हैं. देयर आर अदर नेम्स टू इट. हम उसको स्टेयरकेस या सीक्वेंशियल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है. बट जो ज़्यादा इसका मशहूर है, जो मतलब वर्ड यूज होता है, उसको हम बोलते हैं वाटरफॉल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ओके. in contrast to this, ठीक है, most of the time it is being observed because of the dynamic world, because of the world which is constantly driven by technological change, ठीक है. Most of the time ऐसे होता है, you may have observed, आप सारे सीनियर्स हैं, मतलब you are working on the project, sometimes there is change in the scope,
ठीक है ना, जो प्रोजेक्ट का स्कोप है वो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है ना, प्रोजेक्ट डिफरेंट का स्कोप डिफरेंट तरह से चेंज हो सकता है, ठीक है। एक उसकी सिचुएशन ये है कि कस्टमर जिसके लिए आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको ही इन द बिगिनिंग जो है वो पता ही नहीं है बेसिकली कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट और what would be the ideal and deliverable of the project, ठीक है, उसको आइडिया ही नहीं है, ठीक है, इन द बिगिनिंग, ठीक है। तो दिस कैन बी द वन सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन ये है कि नेचर ऑफ प्रोजेक्ट ऐसी है कि इन द बिगिनिंग इट इज वी डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमारे पास स्कोप जो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा वी विल हैव मोर इंफॉर्मेशन अवेलेबल रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, तो उस केस में हम जो है ना वी विल बी डूइंग द प्लानिंग, अपफ्रंट प्लानिंग, ठीक है। तो अगर हमारे पास इस किस्म की सिचुएशन है कि वी डोंट हैव अ डिटर्मिनिस्टिक स्कोप और देयर आर चेंजिंग फ्रीक्वेंट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स which are coming from the customer, and because of the technological change, okay, there is a lot of dynamism, ठीक है। तो उस केस के अंदर हम जो है ना वो अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूज करते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे मेरा आपसे एक छोटा सा क्विक क्वेश्चन ये होगा कि have you observed any such situation in आपने अपने मतलब जो है जो आप प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं उसके अंदर आपने कभी ऑब्जर्व किया कि देयर आर लॉट ऑफ चेंजिंग रिक्वेस्ट्स in the project and you have to revise the scope and you have to change your budgets and schedules, so कुछ इस किस्म की situation है, so anyone can reply on this. जी इकराम साहब हैं हमारे साथ, वो ही सिंह यस सर, अगर आप थोड़ा सा हमें इस चीज़ को एलेबोरेट करें ताकि हम ना थोड़ा सा अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ ना रेलेवेंस क्रिएट करते जाए साथ साथ। मतलब क्वेश्चन ये है कि हैव यू ऑब्जर्व द चेंजिंग स्कोप in your project, like most of the time you have to revise the scope or there is a changing customer requests. मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर बिल्कुल। हमारे साथ इस तरह काफी प्रोजेक्ट्स में होता रहा है कि इनिशियली प्रोजेक्ट का जो डिजाइन होता है उसके अंदर उन्होंने कुछ चीजें फिक्स की होती हैं, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि एज पर साइट रिक्वायरमेंट की वजह से हमें मतलब है एडिशनल काम करना पड़ता है क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन पे। तो इस तरह के स्कोप ऑफ वर्क में काफी जो है ना चेंजेस आती रहती हैं हमारी। सही, ओके, एनीवन एल्स आप इसमें मजीद कोई अगर कोई आप इनपुट देना चाहें? अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम ना हमने अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को जो इंट्रोड्यूस कराना है उसका जो मेन मकसद ही यही है कि जो भी चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एफिशिएंटली वेलकम किया जाए और उसको स्कोप के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाए और वैल्यू डिलीवर की जाए, ठीक है। अजाइल का जो मेन फोकस है, जो मेन उसका प्रिंसिपल है, जो मेन उसकी आप ये समझिए कि वैल्यू है, वो है इट इज वैल्यू डिलीवरी, लाइक वी नीड टू डिलीवर वैल्यू टू आवर क्लाइंट, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल इन आवर वेरी अवर कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग we may dread kg like we are not interested to change the scope, now it has been finalized, हमारे contract के अंदर ये negotiate हुआ था, so we will follow the same plan. This is traditional waterfall thinking, but आपके पास जो agile project management है, because we are doing project for the client and we need to add value to the client, so it is mandatory and it is by principle we need to accept we need to accept the change and we need to incorporate the change ताकि जो है ना कस्टमर को बेस्ट वैल्यू डिलीवर की जा सके, ठीक है। तो अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सबसे पहले तो एक उसका कॉन्सेप्ट जो मेन एक कॉन्सेप्ट है जहाँ से वाटरफॉल और अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिफर हो जाती है, वो यही है कि वी ऑलवेज वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स बाय द क्लाइंट एंड वी ट्राई टू डिलीवर मैक्सिमम वैल्यू टू द क्लाइंट। और जब भी हमारे पास चेंजेस आती हैं हमने इफेक्टिवली चेंज को कैसे मैनेज करना है और कैसे वैल्यू डिलीवर करनी है, देयर इज सो वी नीड टू लुक फॉर द अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। रिसेंटली अगर आप थोड़ा सा मैं आपको उसमें अपडेट करता जाऊँ
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की जो अपडेटेड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो 7th एडिशन एक आपने देखा होगा. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस 7th एडिशन? एक अभी रिसेंटली पिम्बॉक जो है ना वो 7th एडिशन जो है ना वो पब्लिश हुई है. तो जो 7th एडिशन है उसके अंदर बेसिकली, और अगर हम 6th एडिशन और 7th एडिशन को कंपेयर करें तो उनके अंदर जो एक बहुत बड़ा मेन डिफरेंस है, वो यही है. जो मेन डिफरेंस है बिटवीन द 6th एडिशन एंड 7th एडिशन इज दैट इस 7th एडिशन के अंदर उन्होंने अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैज बिकम एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. अगर आप PMP सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको जो है वो अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. लाइक दे आर ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एग्जाम इज बेस्ड ऑन अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल रिसर्च फ्रॉम द different projects and from the feedback of the subject matter experts, it's clear that change is inevitable on project and we need to incorporate that change into the project so that we may deliver value. ठीक है, तो agile project management का इसलिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो हमें जो बेसिक एक चीज़ हमने अंडरस्टैंड की between the difference between agile and waterfall project management is that वाटरफॉल के अंदर आपके पास स्कोप फिक्स होगा और आप बड़ा सीक्वेंशियल तरीके से चलेंगे, और उसके जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं. जो आप फॉर एग्जांपल क्रिटिकल पाथ मेथड बनाते हैं, आप एक्टिविटीज डिफाइन करते हैं, एंड दैट इज ऑल वाटरफॉल स्टफ. ठीक है, वाटरफॉल स्टफ बहुत अच्छा है अगर आपका प्रोजेक्ट डिटर्मिनिस्टिक है, यू आर क्लियर अबाउट एवरीथिंग, देयर आर नो चेंजेस. बट बिकॉज वी नो ऑन द प्रोजेक्ट वी हैव सीन कि बहुत सी चेंजेस हो सकती हैं, तो इस केस के अंदर फिर हम क्या यूज करेंगे, इसके अंदर जो है ना अजाइल को हम यूज करेंगे ताकि हम चेंजेस को वेलकम कर सकें एंड वी मे डिलीवर द वैल्यू टू द क्लाइंट. ठीक है जी, ओके. इकराम साहब का सवाल है कि हम हाउ वी कैन इंटरेक्ट थ्रू ऑडियो. ये मेरे ख्याल में मैडम ही बता सकती हैं. मैम अगर आप इनका माइक अनम्यूट कर दें. इकराम साहब. Ikram sab wants to ask something. Okay, जब आपका माइक अनम्यूट हो तो you can ask question at that time. It's okay. Okay जी, again this is same slide एक different perspective में दिखाया गया. ठीक है, कि हमारे पास जो अजाइल जो वाटरफॉल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इसके अंदर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे पास फिक्स्ड होंगी. ठीक है, और हम उसके अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज और टाइम को एस्टिमेट करेंगे. ठीक है, जो हमारे पास वाटरफॉल है वो प्लान ड्रिवन है, मींस वी आर फॉलोइंग द प्लान. ठीक है, मगर अगर हम अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो इफ वी आर मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स यूजिंग अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो हमारे रिसोर्सेज और टाइम फिक्स्ड है. ठीक है, ये आपको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि आपके पास अजाइल में रिसोर्सेज और टाइम जो है वो फिक्स्ड है. ठीक है, resources and time are fixed, but we can estimate the feature, we can change the features so that we may ensure that value is being delivered. ठीक है, तो ये दोनों में जो है ना वो डिफरेंस है. ठीक है, ओके जी. अच्छा, हम नेक्स्ट में जो थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम इस साइकिल को हम डिस्कस करें बेसिकली. ठीक है, अगर हम साइकिल को डिस्कस करें कि ट्रेडिशनल वर्सेस अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो हमारे पास साइकिल है. ठीक है, अगर हम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर देखिए, हम जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर हम बड़ा सीक्वेंस से चल रहे हैं. वी आर मूविंग इन अ वेरी सीक्वेंशियल मैनर. लाइक फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम प्लान करेंगे, फिर हम उसके बाद क्रिएट करेंगे, देन वी विल रिव्यू. ठीक है, एंड देन वी विल रिलीज. ठीक है ना, अगर हम कोई मतलब जिस तरह से हम सीक्वेंस में चलते हैं कि हमारे पास प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद फिर एग्जीक्यूशन के बाद फिर जो है ना उसका मतलब जो है ना वो डिलीवरी होती है. ठीक है, सो वी आर मूविंग इन सीक्वेंस. हम सारी की सारी प्लानिंग अप फ्रंट कर रहे हैं. ऑल द प्लानिंग इज बीइंग डन अप फ्रंट. ठीक है, अप फ्रंट मतलब ये कि जैसे जब आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी का भी कोई रोड की कंस्ट्रक्शन की बात करें या हाई राइज की, तो उसमें शुरू में स्कोप डिफाइन होगा, शुरू में उसकी डिटेल्ड प्लानिंग होगी. ठीक है, डिटेल्ड उसकी जो है ना वो कॉस्टिंग होगी.
और उसको जो है ना आप एक्टिविटीज में कन्वर्ट करेंगे, उसका जो है ना क्रिटिकल पाथ बनाएंगे, एंड यू विल सी कि इट विल मतलब जो है ना इट विल टेक 2 to 3 years टू डिलीवर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है ना। ये आपके पास कन्वेंशनल वे है, ठीक है। अच्छा, अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होता है कि हम आइट्रेशंस करते हैं। अजाइल इज बेस्ड ऑन आइट्रेशन, इट्स नॉट सीक्वेंशियल, इट इज आइट्रेटिव, ठीक है। मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ। हमारे पास जो है ये सीक्वेंशियल है जो ट्रेडिशनल है, ठीक है, और जो हमारे पास अजाइल है ये हमारे पास क्या है, आइट्रेटिव। मतलब हम ये हमारे पास सीक्वेंशियल है, ठीक है, और अजाइल जो है वो हमारे पास क्या है, आइट्रेटिव। अच्छा, इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिनेरियो जो है ना वो बताने की कोशिश करता हूँ। वो ये है बेसिकली कि देखेंगे अजाइल जो है ना बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। मैं आपको इसकी एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया एंड यू हैव प्लान्ड इट फ्रॉम स्टार्ट टू एन एंड, ठीक है, and it took considerable amount of man hours and effort to plan the project from start to end. आप होता है कि लाइक किसी भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर you need input from the subject matter experts, आपके civil engineers हैं, mechanical engineers हैं, MEP engineers हैं, they all sit together and they give their valuable inputs and then you develop the plan, ठीक है। अब आपने प्लानिंग के ऊपर एक सिग्निफिकेंट एफर्ट पुट कर दी एंड फ्रॉम स्टार्ट टू एन एंड आपने जो है ना वो प्रोजेक्ट को प्लान कर दिया। दिस इज वन सिनेरियो। अच्छा, अब इन द मिडल ये होता है आफ्टर यू हैव प्लान्ड और आपने जो है ना वो आपने जो है ना वो क्या उसको बोलते हैं स्कोप बेस लाइन बना ली है, ठीक है। एक आपने बेंचमार्क सेट कर लिया, एक आपने सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज सेट कर लिए, ठीक है, कि दिस इज द रोड मैप टू फॉलो टू डिलीवर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। अब उसमें होता ये है बेसिकली कि आफ्टर सम टाइम बेसिकली इस तरह से होता है कि देयर इज अ क्लाइंट रिक्वेस्ट, ठीक है ना। क्लाइंट आपको जो है ना आस्क्स यू टू डू समथिंग, ठीक है। उस क्लाइंट रिक्वेस्ट के ऊपर आपको अपने एग्जिस्टिंग प्लानिंग जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चेंज करनी पड़ जाती है, लेकिन यू हैव टू चेंज एंड रिवाइज ऑल फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। तो उसमें जो आपने इतनी एफर्ट शुरू में की थी वो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपकी एफर्ट जो है ना वो ज़ाया हो सकती है, ठीक है। अजाइल के केस में किस तरह से होगा कि आप जहाँ तक आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यू विल डिवाइड दैट इंफॉर्मेशन इनटू डिटर्मिनिस्टिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। और जहाँ तक आपके पास बिल्कुल क्लैरिटी है उतनी आप प्लानिंग करेंगे, उस चीज़ को आप प्लान करेंगे, क्रिएट करेंगे एंड यू डिलीवर दैट, ठीक है। ये बात याद रखें कि अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हम जो प्रोजेक्ट जो डिलीवरेबल हम जो बनाते हैं, ठीक है, वो डेवलप इट थ्रू इंक्रीमेंट्स इनटू इंक्रीमेंट्स। पहले एक चीज़ स्मॉल इंक्रीमेंट, देन नेक्स्ट इटरेशन के अंदर नेक्स्ट इंक्रीमेंट, नेक्स्ट इटरेशन के अंदर नेक्स्ट इंक्रीमेंट। मींस you don't do a full upfront planning in agile project management, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें one more thing that I would like to share is that mostly अभी currently अगर आप application of project management की बात करें तो जो आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या जो आपकी IT इंडस्ट्री है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंडस्ट्री है उसके अंदर अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। रीज़न बीइंग कि आपके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसकी प्रोजेक्ट की नेचर इस तरह से होती है कि देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस बीइंग रिक्वेस्टेड बाय द क्लाइंट, ठीक है। एंड समटाइम्स क्लाइंट इवन डोंट नो कि उनकी जो एंड प्रोडक्ट हाउ डज इट लुक्स लाइक, ठीक है ना। उसके अंदर बहुत सी चेंजेस आ सकती हैं। तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि क्लाइंट के साथ एक मीटिंग होती है, विद दैट मीटिंग दे कलेक्ट बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कि क्लाइंट चाहता क्या है, ठीक है। उस रिक्वायरमेंट्स को किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है इस इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, और फिर वो सॉफ्टवेयर का डेमो दिया जाता है टू द क्लाइंट कि ये हमारी प्रोडक्ट इतनी डेवलप हो गई, ठीक है। उस जो प्रोडक्ट का डेमो है, बेस्ड ऑन दैट डेमो जो आपकी डेवलपमेंट टीम है, प्रोजेक्ट मैनेजर कलेक्ट्स द फीडबैक, ठीक है, और उस फीडबैक के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट आइटरेशन में उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आइटरेशन है, इसको हम आइटरेशन जो है ना वो बोल रहे हैं, सही है। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल वर्सेस आइटरेटिव कि हम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अप फ्रंट प्लानिंग कर लेंगे सारी, और उसके मैंने आपको ड्रॉबैक बताया है कि मतलब आपने इतने ज़्यादा मैन आवर्स लगाए, उसके अंदर फिर चेंजेस आई, ठीक है। तो चेंजेस सजेस्ट होने की वजह से क्या हुआ बेसिकली कि
आपको जो है ना अपना एग्जिस्टिंग प्लान सारा चेंज करना पड़ा अगेन, तो उसके ऊपर भी आपकी जो है ना बहुत ज़्यादा फिर मैन आवर्स लगे, ठीक है। तो अजाइल उसके अंदर ये बताता है कि जितनी आपके पास डिटर्मिनिस्टिक इंफॉर्मेशन है उसको आप किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, डॉक्यूमेंटेशन में नहीं, इन सम डिलीवरेबल इन प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें एंड देन शो दैट डिलीवरेबल इन टर्म डिलीवरेबल टू द क्लाइंट। क्लाइंट उसको देखेगा, ठीक है ना, और वो अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसको फीडबैक करेगा एंड बेस्ड ऑन फीडबैक यू कंटिन्यूली इम्प्रूव द प्रोडक्ट इन नेक्स्ट इटरेशंस, ठीक है, एंड इवेंचुअली यू विल रीच द फाइनल प्रोडक्ट विच एग्जैक्टली मैचेस द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पर मुझे आप थोड़ा सा बताएं इसके अंदर फीडबैक के, लाइक हाउ डिड यू फील कि व्हाट कैन बी द ड्रॉबैक्स ऑफ अजाइल और द ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्या हो सकते हैं इसके अंदर, एनी फीडबैक इन दिस? Sir, I request you ओके जी, to सॉरी please कि unmute. There is थोड़ा a सा question from Ikram Saab, sir. I think he has dropped it जी जी on the chat box as well. जी 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 Ikram Saab, I इकराम request साहब, you to, I request you to please unmute the mic. जी सर, आवाज आ रही है? जी प्लीज सर, आप जी जी प्लीज इकराम क्वेश्चन साहब, कीजिए। जी इकराम साहब। अच्छा सर, ट्रेडिशनल में तो ये है कि हमारे मतलब मोस्टली जो है चीजें फिक्स होती हैं, कॉस्ट भी टाइम भी आपको पता होता है कि यही चीजें करनी है इसी टाइम में इस कॉस्ट के अंदर। जी सर। लेकिन एजाइल में जब स्कोप ऑफ वर्क चेंज होता है तो ये चीजें क्लियर नहीं होती आपके सामने कि टाइम इस पे कितना लगेगा और कॉस्ट कितनी बढ़ेगी। जैसे मैं रिसेंटली बता दूं, हमारे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें एक लूप था रोड का जो तकरीबन 2 किलोमीटर बनता था। उसके बाद क्लाइंट ने ये डिसीजन किया कि आप ये इतने लंबे 2 किलोमीटर के लूप को छोड़ के शॉर्ट एक रास्ता, एक पहाड़ी थी उसको कट एंड कवर टनल बना लें। जी जी अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसमें टाइम भी ज्यादा लग रहा है और वो कॉस्ट का भी अंदाजा नहीं होता, तो ये एक प्रॉब्लम होती है उसमें। अच्छा सर, इसको ना टैकल करने के ना दो तरीके हैं बेसिकली, ठीक है। अजाइल में बेसिकली हमने जो ऊपर एक ट्रायंगल्स देखी उसके अंदर हमने ये देखा बेसिकली कि हमारी जो फीचर्स हैं वो हैं तो फिक्स्ड फीचर जो है हमारे पास, ये फीचर्स हैं तो हमारे पास एस्टिमेटेड, मगर जो इसके रिसोर्सेज और टाइम है वो फिक्स्ड है, ठीक है। अजाइल में अंदर बेसिकली जो वर्किंग होती है ना वो इटरेशंस के अंदर हो रही होती है, मतलब उसकी जो ड्यूरेशन है, मतलब आप एक वोकेबलरी है टाइम बॉक्सिंग की। टाइम बॉक्सिंग का मतलब ये है कि आपने लेट्स सपोज एक आइट्रेशन की ड्यूरेशन फिक्स कर दी, ठीक है। उस फिक्स ड्यूरेशन के अंदर जितना काम हो रहा है, ठीक है, उतना वो काम होगा और जो रिमेनिंग काम है उसको आप नेक्स्ट आइट्रेशन में करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टाइम बॉक्सिंग, ठीक है। टाइम बॉक्सिंग, टाइम बॉक्सिंग का मतलब ये है
कि यू फिक्स नंबर ऑफ डेज। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी हमारे पास 30 डेज है, ठीक है, 30 डेज में जितना आपके पास काम होगा यू विल डू दैट, एंड रिमेनिंग वर्क यू विल पुट इनटू द नेक्स्ट आइटरेशन, ठीक है ना, आप उसको नेक्स्ट आइटरेशन के अंदर डाल देंगे। दिस इज हाउ यू डू थिंग्स इन अजाइल। मगर जो आप सिचुएशन बता रहे हैं, ठीक है, आपके पास आपने जो सिचुएशन बताई कि एक आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, उसके पास आपके डिटर्मिनिस्टिक एस्टिमेट्स हैं उसकी कॉस्ट के, उसकी ड्यूरेशन के, ठीक है, मगर नाउ यू हैव सीन कि सम अल्टरनेटिव, ठीक है, तो आप ऑफ कोर्स अगर अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई हुए तो उसकी भी प्रॉपर जब तक स्कोप आइडेंटिफाई नहीं होगा तो ये अजाइल नहीं है जो आप बता रहे हैं, ये अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं है। बेसिकली आपके पास एक एग्जिस्टिंग मोड था, ठीक है, आपने उससे एक बेटर मोड आइडेंटिफाई किया। अब जब तक आप उसकी डिटेल्ड स्कोप की प्लानिंग नहीं करेंगे आपको उसका स्केड्यूल और स्कोप का नहीं पता लगेगा, ठीक है, मतलब ये है वाटरफॉल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही, ठीक है ना। सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर मोस्टली जो है ना वो वाटरफॉल ही यूज होती है, ठीक है। अजाइल मोड के ऊपर अगर आप उसको देखना चाहें तो आप उसको इस तरह से देख सकते हैं कि बजाय सारी जो आपने अल्टरनेट रूट बताया उसकी प्लानिंग करने के, आप उसमें ये करेंगे कि यू विल जस्ट उसकी जो है ना वो छोटी सी जितना आपके पास स्कोप क्लियर है उस क्लियर स्कोप का जो है ना वो आप उसकी टाइम और कॉस्ट की प्लानिंग कर लेंगे, देन यू विल एग्जीक्यूट इट। आफ्टर दैट एग्जीक्यूशन आप उसको जो है ना वो नेक्स्ट लेवल, मतलब जो नेक्स्ट आपके पास डिटर्मिनिस्टिक स्कोप होगा आप उसकी जो है ना वो प्लानिंग कर लें, ठीक है राम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मलिक इकराम फ्रॉम वाटर एंड एग्रीकल्चर डिवीजन। जी सर। आवाज़ आ रही है सर मेरी? जी जी बिल्कुल आवाज़ आ रही। अच्छा सर, इसमें ये गुजारिश थी कि जैसे आपने वाटरफॉल और एजाइल का डिफरेंस बताया कि वाटरफॉल में पहले सारी चीज़ें मालूम होती हैं, स्कोप भी होता है, उसके हिसाब से हम चलते हैं आगे। जी सर। अब नेस्पाक में जो हमारी प्रैक्टिस है या हमारे जो क्लाइंट है, हमारा तो ये होता है कि क्लाइंट गवर्नमेंट का होता है, उसमें पहले TURs भी फिक्स होती हैं, उसका बजट भी जी फिक्स सर। होता है, फिर हमें प्रोजेक्ट अवार्ड होता है तो हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है कंट्रोल एस्टिमेट, जिसमें हम रिसोर्सेज और टाइम फिक्स कर देते हैं कि ये हमारे पास है, हमने इस तरह चलना है। ये जो सर एजाइल है कि इसमें स्कोप का भी आगे अंदाजा नहीं है और ट्रायल करते रहें, तो इसमें तो हमारा जो सिस्टम है उसमें तो क्लाइंट से हमें पहले ही पेमेंट्स के इशू आ जाते हैं। जब हमें सर स्कोप ही नहीं पता होगा, हम बंदे लगा दें, कल को क्लाइंट कहेगा जी इस पे तो 4 बंदे लगाने थे, आपने 5 क्यों लगा दिए, 8 क्यों लगा दिए। इसको कैसे हम रिलेट कर सकते हैं अपने नेस्पा के सिस्टम के साथ? अच्छा इकराम साहब, इसमें एक चीज़ तो ये है कि देखें, एक फर्स्ट जो इसका स्टेप में आंसर है वो ये है कि अगर आपके पास आपके नेचर ऑफ प्रोजेक्ट ये है कि आपको स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट क्लियर है, इट इज जी जी डिटर्मिनिस्टिक, यू नो व्हाट टू डू, तो फिर यू जी विल नॉट गो फॉर अजाइल, ठीक है। राइट मैंने ये अर्ज की थी कि सम टाइम होता है इस तरह से है कि आपके पास स्कोप की क्लैरिटी नहीं होती, ठीक है। जी जी व्हेन यू डोंट हैव स्कोप क्लैरिटी तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि हम बिल्कुल स्टॉप कर दें, वी डोंट वर्क। सेकंड इज जी कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये होता है कि जितनी बेर मिनिमम इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है हम उसको इम्प्लीमेंट करें एंड देन सी द रिजल्ट, ठीक है। फिर उसको कस्टमर के साथ मीटिंग करें, उसके साथ जो फीडबैक आई है उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते जाएं और फिर जो है ना उसको लेकर चलते जाएं, ठीक है सर। एक तो राइट उसका ये है, इट इज नॉट नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इफ स्कोप इज क्लियर, ठीक है। अगर तो स्कोप क्लियर नहीं है और उसके बावजूद हमने प्रोजेक्ट करना है और प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है और उस अनसर्टेनिटी को मैनेज करना है, तो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस हम अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर जाएंगे सर। राइट, थैंक यू। जी उसामा, आपका भी कोई क्वेश्चन है? उसामा, उसामा ने क्वेश्चन लिखा है, मैं सुना, कैन द टोटल फिक्स द रिसोर्सेज एंड द टाइम में चेंज डिपेंडिंग अपॉन द इटरेशंस, कैन द टोटल, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें फिर मैं आपको बता दूं उसको, अगर उसामा आर यू लिसनिंग? ओके जी, आप इसको एलेबोरेट कीजिएगा फिर मैं इसको जाना। अच्छा ओके, इसको थोड़ा सा वो कर दें, एलेबोरेट कर दें माइक के थ्रू, फिर हम इसको आपको रिप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, हमारे पास जो नेक्स्ट है स्लाइड है उसके अंदर बेसिकली ये है कि व्हेन टू यूज अजाइल, जिस तरह से भी इकराम साहब ने सवाल किया, ठीक है इकराम साहब ने, कि हमने
हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हम, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू गो फॉर अजाइल फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। जब हमारे पास डिग्री ऑफ चेंज, ठीक है, अगर डिग्री ऑफ चेंज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये इसके ये दो चीज़ें हैं, हाउ टू सेलेक्ट द अजाइल और वाटरफॉल। अगर आप ये इस साइड पे देखें, ये आपके पास प्रिडिक्टिव है वाटरफॉल। वाटरफॉल तब यूज होता है जब आपके पास प्रोजेक्ट के अंदर डिग्री ऑफ चेंज नहीं है और फ्रीक्वेंसी ऑफ डिलीवरी भी बहुत कम है, मतलब आपने कोई एक पूरी प्रोडक्ट बना के देनी है जिस तरह से मोस्टली कंस्ट्रक्शन के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। तो इसकी डिलीवरी बहुत मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ डिलीवरी भी बहुत कम है और डिग्री ऑफ चेंज भी बहुत कम है, तो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस यू विल यूज वाटरफॉल अप्रोचेस, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री ऑफ चेंज बहुत ज़्यादा और फ्रीक्वेंसी ऑफ डिलीवरी भी ज़्यादा है, ठीक है, मतलब आपने प्रोडक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में, इंक्रीमेंट्स में डिलीवर करना है और क्लाइंट बहुत ज़्यादा जो है वो आपको मतलब चेंजेस रिक्वेस्ट कर रहा है, या बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस, तो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस आप क्या करेंगे, आप अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को यूज़ करेंगे, ठीक है सर। तो we are not, I'm not saying, I'm not advocating that we can use agile project management or we should use agile project management on all of the project. It depends upon the nature of the project and scope clarity. अगर तो स्कोप क्लियर नहीं है, उसके अंदर चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं और फ्रीक्वेंसी ऑफ डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो देन वी विल यूज अजाइल, ठीक है जी। आई हैव एनी क्वेश्चन इन दिस स्लाइड? जस्ट इसमें सिर्फ यही देखेंगे प्रेडिक्टिव वर्सेस अजाइल। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया अदनान साहब ने, कैन वी यूज अजाइल फॉर स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट? बिल्कुल है, इसको हम हाइब्रिड अप्रोच बोलते हैं, जहाँ पे एक पूरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है, ठीक है, उसके अंदर जहाँ पे आपके पास स्कोप बिल्कुल क्लियर है, उसको आप वाटरफॉल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच के थ्रू यूज़ करें, मतलब उसकी एक्टिविटीज़ बनाएं, सीक्वेंसिंग बनाएं, उसका क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करें, ड्यूरेशन वगैरह निकालें, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप उसकी जो जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, जहाँ पे आपने रिक्वायरमेंट्स जनरेट करनी है, यू डोंट नो व्हाट टू डू, तो उस अंडर दैट केस आप अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, इसको हाइब्रिड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, ये बिल्कुल होता है इससे। ओके जी। अच्छा, अब ये देखें नेक्स्ट, एक और जो दोनों में डिफरेंस है अजाइल वर्सेस प्रेडिक्टिव। प्रेडिक्टिव में देखें आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, यू मे एग्री विद मी, आप मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप वर्किंग कर रहे होंगे वो इस तरह से होगी बेसिकली कि सॉरी, प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल में आप क्या करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। अच्छा, प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल में आप क्या करते रहते हैं, पहले प्लानिंग करते रहते हैं, ठीक है। आप देखेंगे शुरू में सारी यू आर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंटेशन 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 एंड एट द एंड ऑफ द डे यू आर क्रिएटिंग द डिलीवरेबल, ये आपकी प्रोडक्ट है एट द एंड ऑफ द डे। अजाइल में आप क्या करते हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, बल्कि आपका ज़्यादा फोकस जो है वो, योर फोकस इज ऑन डेवलपिंग द प्रोडक्ट और डूइंग थिंग्स, ठीक है। आपका जो फोकस होता है वो किस चीज़ के ऊपर होता है, योर फोकस इज ऑन डेवलपिंग द डिलीवरेबल, ठीक है ना, उसके ऊपर आपका फोकस होता है। तो आप शुरू में क्या करेंगे, एक छोटा सा एक प्रोडक्ट बनाएंगे बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट आइटरेशन में आप उसी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेंगे, देन इन नेक्स्ट आइटरेशन यू कीप ऑन इम्प्रूविंग अंटिल यू रीच द फाइनल प्रोजेक्ट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्टिव वर्सेस एजाइल, कि इसके अंदर अप फ्रंट प्लानिंग बहुत कम होती है, रादर यू डू थिंग्स, आप करते हैं काम, यू डेवलप प्रोडक्ट, यू शो टू द क्लाइंट, क्लाइंट आपको उसको फीडबैक देता है एंड बेस्ड ऑन दैट फीडबैक यू इम्प्रूव दैट, आप जो है वो अपने उसको प्रोडक्ट को जो है ना वो इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अडेप्टिव लाइफ साइकिल, या इसको हम अजाइल का जो है ना वो लाइफ साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज डेवलपिंग प्रोडक्ट इन द इंक्रीमेंट्स, ठीक है ना, इंक्रीमेंट्स के अंदर बिल्ड करना। नेक्स्ट है अगेन, अगर आप इसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का देखें तो अगर आप प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल में देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल में देखते हैं तो शुरू में आपकी जो प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इन द बिगिनिंग यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्लानिंग, ये आपकी जो रेड कर्व है इट इज़ करस्पॉन्डिंग टू द प्लानिंग के शुरू में, प्रोजेक्ट के शुरू के फेसेस में, शुरू के लाइफ साइकिल में यू डू अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड देन आपकी प्लानिंग खत्म हो जाती है और आपकी एग्जीक्यूशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। मगर अजाइल के अंदर क्या होता है कि आपकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों साथ साथ चल रही हैं। उसकी वजह यह है कि आप प्लानिंग करते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यू शो इट टू द क्लाइंट, बेस्ड ऑन फीडबैक यू अगेन डू प्लानिंग, अगेन यू एग्जीक्यूट इट, ठीक है। सो इट्स गोज एन इटरेशन एंड इसलिए जो है ना इन दोनों की जो कर्व है वो साथ साथ चल रही है, ठीक है जी।
अच्छा, यहाँ तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट से अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछें, फिर मैं आगे आपको इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूँ बेसिकली कि अजाइल अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हाउ व्हाट इज इट्स बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वो क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें किस तरह से करें। अच्छा, ये किसी ने सवाल किया है कि सम टाइम क्लाइंट चेंज द स्कोप अगेन एंड अगेन एज पर यूटिलाइज टाइम एंड अच्छा, इसमें मैडम मुझे सिर्फ जो एडमिन है मैडम मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या ये कैन ये these participants can they speak through their mics or not, because it will be easy for me. Sir, it's all up to you. If you would like to have all the participants to unmute, we can go for this option as well. But we just would like to encourage the participants either to have the raise hand option, because we are already here for the raise hand option available for them, or they can drop their queries on the chat box. The chat box is directed to you, sir. You can answer the queries as per the chat box. The questions are arising so far. Okay, ma'am. Okay. The Thank you. question is, some clients change the scope again and again. Let's utilize time and resources, but since both time and resources are fixed in agile projects, over project may be in loss. इसमें रिप्लाई ये करूंगा बेसिकली कि हमने जो अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो मेन फोकस है दैट इज बेस्ड ऑन वैल्यू डिलीवरी, ठीक है। इफ क्लाइंट इज रिक्वेस्टिंग द चेंज, ठीक है, if client is requesting the change, then we should be our focus being a execution team or delivery team must be to deliver the value, ठीक है। of course agile project management जब आप implement कर रहे हैं, so you will not be putting more resources from your own pocket to add value. जब आप iteration करते हैं, of course अगर उसके अंदर कोई extra resources लग रहे हैं, तो you may request to the client always कि let's suppose ये हमारा existing scope ये है, इसके लिए हमारे पास resources इतने हैं, now you have requested change and this is something new, for example new feature in the existing project or in the existing scope. So in that case you will request extra charges for that, ठीक है। but the focus is on delivering value because client is suggesting the change, ठीक है, और वो change existing जो already scope negotiate हुआ उसके अंदर नहीं है, under that case जो है ना वो आपके जो client है उसको ज्यादा जो है ना वो पे करना पड़ेगा। so there will be no loss, but there is the value in the project कि हमारा जो focus है वो client को value deliver करना है, that is the main thing. Next question है जी, Sama, can the agile project management be related to building of a private house, as we don't know the scope at the beginning and the product's delivery vary with the change request for the employer finishing interior. अच्छा, इसमें ये है कि मोस्टली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो its scope is very much deterministic. We are not building house for the first time, ठीक है ना, we pretty much know the requirements, ठीक है। तो हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कर देना कि हमारे लिए इम्प्लीमेंट करना वो मुश्किल हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि वी नो अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड देन वी मेक एक जो उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है हम उसको इतना कॉम्प्लेक्स कर दें कि उसको जो है ना इम्प्लीमेंट करने में हमें प्रॉब्लम आए या जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उसको जो है ना वो समझ ना सकें, ठीक है। जो होम की कंस्ट्रक्शन इज अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस एंड आई डोंट थिंक कि उसके अंदर आपको जो है ना वो ज़्यादा उसकी मतलब अजाइल की ज़रूरत है, ठीक है। जब आपके पास कोई बहुत क्रिटिकल प्रोजेक्ट होता है, मतलब लेट्स सपोज यू आर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, या आप कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, यू आर कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग एंड यू आर यूजिंग द सॉफ्टवेयर बिजनेस इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, बिम सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो उस केस के अंदर इफ यू आर यूजिंग बिम एट नेस्पार्क, तो वहां पर जो है ना वो अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूज हो सकती है, राइट। आर यू यूजिंग बिम सॉफ्टवेयर in NESPARK or not, business information modeling? No. अच्छा, जो आपका जो BIM है बेसिकली एक न्यू सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो इस तरह का सॉफ्टवेयर है बेसिकली कि आप जो भी आप कंस्ट्रक्शन करने हैं आप उसको जो है ना वो कंप्यूटर एनवायरनमेंट में पहले सिमुलेट करके क्लाइंट को दिखा सकते हैं, ठीक है। बिफोर सम कंस्ट्रक्टिंग समथिंग ऑन द ग्राउंड you can develop the models in the computer, ठीक है। बेसिकली ये AutoCAD का ही है सॉफ्टवेयर है। जैसे आपका
AutoCAD 2D होता है, ये basically 4D software है, you design different things, ठीक है, and you show simulations to the client आपको वहीं पे changes suggest करता है. So you keep on changing the software until clients agrees with the requirements, ठीक है, और फिर आप उसको जो है ना actually construct करते हैं, ठीक है. So कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रॉपर एप्लीकेशन तभी है जब आप जो है ना उसको बिजनेस इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जो है ना वो यूज कर रहे हैं. अंडर दैट केस यू कैन यूज अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना. सिविल के अंदर BIM का यूज करना जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर जो भी एड्रेशन होगी, एड्रेशन आप एड्रेशन में चेंज लाएंगे, यू विल शो टू द क्लाइंट चेंजेस सजेस्ट करेगा, आप उसको कंप्यूटर एनवायरनमेंट के अंदर ही जो है ना वो सिमुलेट कर लेंगे. बिकॉज अगर आप रियल टाइम ग्राउंड के अंदर कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उसको चेंज करते हैं तो उसकी रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है. सो with advancement of technology we have new softwares available like business information modeling, ठीक है. You can develop 3D models of the buildings, ठीक है. MEP वर्क सारा आप उसके अंदर दिखा सकते हैं. एंड there can be changes, ठीक है, चेंजेस सजेस्ट हो सकते हैं, उसको सॉफ्टवेयर के अंदर ही चेंजेस की जा सकते हैं. So we can use we need Sir, I think there's some internet connectivity issues at your end, sir. I ask my participants to please have some patience. I think there are some network signals at our trainer's end. Well, he's just about to connect in another 2 minutes. I request my participants to please hold on for some time and don't get offline. He's just about to be there. Thank you.
Well, we apologize for the inconvenience at the end of our trainer. He's just connecting in a couple of minutes. I can only request my participants to please stay tuned. Yeah, there is a network problem. There is a network problem. And meanwhile, you can just drop your queries if you feel, yeah, he's here. You can drop the queries on the chat box. So kindly unmute your mic. People are there for you to listen, to hear the expertise. We do understand the connectivity issues. And, you can continue with the session, sir, please. Thank you. I'm sorry for the inconvenience, basically because of this connectivity issue. So let us resume the session where we have left, basically. So we were discussing basically my screen is visible. Sir, yes, sir, it's visible. It's completely fine. You can go ahead with the slides, sir. Thank you. Okay, Ji. Okay, we were discussing about what is the difference between agile and this predictive life cycle and agile life cycle. So far, did you had any questions while I was sign off? So, agar aapka koi question hai during that, if you came into your mind, so you can please ask. Because until here we have completed the basic concept of the agile project management. The next would be the structure. Basically जो agile project management का वो structure क्या है, उसको हम जो है ना वो discuss करेंगे. So is there any question? So you can please ask. Okay जी, next basically जो हमारे पास agile project management है, the agile project management, it has basically a very well structured body. ठीक है. सबसे पहले हमारे पास agile की 4 values हैं. Then we have 12 principles that are based on values, and then after that we have few practices, right? So first of all we'll discuss why values, why principles and why practices. ठीक है. वैल्यूज बेसिकली ये होती हैं कि अगर आप अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फिर इम्प्लीमेंटिंग द अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सो देयर इज नो कंप्रोमाइज ऑन वैल्यूज. ठीक है ना. वैल्यूज को आपने हमेशा एडहेयर करना है. यू विल हैव टू एडहेयर टू दोस वैल्यूज. ठीक है. उन्हीं बेस्ड 4 वैल्यूज के ऊपर हमारे पास देयर आर 12 प्रिंसिपल्स दैट आर वेरी मच अलाइंड विद द वैल्यूज, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव डिफरेंट प्रैक्टिसेस. ठीक है ना, जो कि अजाइल की प्रैक्टिसेस हैं, या आप उनको मेथोडोलॉजीज भी बोल सकते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले अगर आप इसका एक डिफरेंट फॉर्म में देखें, ठीक है, पिरामिड है वो. बेसिकली वी हैव वैल्यूज, देन प्रिंसिपल्स, देन वी हैव सेवरल मेथड्स. ठीक है. यू मे हैव, आप में से जो आईटी के अंदर लोग हैं, दे मे नो अबाउट द स्क्रम, उन्होंने ये सुना होगा, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, या जो मैन्युफैक्चरिंग साइड के ऊपर है, दे मे नो अबाउट द कैनबैन. ठीक है. ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इसके साथ जो है ना वो लिंक्ड है. तो वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड मेथोडोलॉजीज. अच्छा, हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली अजाइल की वैल्यूज क्या है. ठीक है. फिर प्रिंसिपल्स क्या हैं, देन विल डिस्कस वन ऑफ द मेथड. सबसे पहले अगर हम देखें, ठीक है, हमारे पास जो है, जो वैल्यूज हैं, ठीक है, दे आर वेरी प्रैक्टिकल. ठीक है. एंड दे आर वेरी हेल्पफुल, और इनकी जो ओरिएंटेशन है वो यही है कि अगर आप इन वैल्यूज के साथ एडहेयर करेंगे तो यू विल इंश्योर कि कस्टमर को जो है ना वो वैल्यू डिलीवर हो रही है. ठीक है. सो सबसे पहले जो हमारी वैल्यू है वो ये है कि इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस आवर प्रोसेसेस एंड टूल्स. ठीक है. इन आवर प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट हमारे पास बहुत से प्रोसेसेस एंड टूल्स अवेलेबल होते हैं. ठीक है. मगर जब तक टीम्स, अजाइल की जो फर्स्ट वैल्यू है वो ये है कि जब तक टीम्स आपस में प्रॉपरली इंटरैक्ट और कोलैबोरेट नहीं करेंगे, ठीक है, तो बेशक आपके पास प्रोसेसेस एंड टूल्स हैं, यू वुड नॉट बी एबल टू डिलीवर वैल्यू टू द क्लाइंट.
ठीक है ना, आप एक जो है ना वैल्यू ऐड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो हमारे पास प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए एक तो प्रोसेसेस एंड टूल्स होते हैं, एंड देन वी हैव इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शंस, बट अजाइल सेज दैट इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोसेसेस एंड टूल्स, ठीक है। इन वैल्यूज को हम इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि जो हमारी इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस हैं, जो लेफ्ट साइड के ऊपर हाईलाइटेड आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, वो जो आपके पास वैल्यूज हैं, दे आर मोर इंपॉर्टेंट, they are more important than the processes and tools, right? Okay जी, next है working software our comprehensive documentation. मैंने जिस तरह से पहले भी बताया कि अजाइल की जो ज़्यादातर जो एप्लीकेशन है वो है अजाइल, इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इसकी जो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वर्किंग सॉफ्टवेयर और कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, जिस तरह से हमने पहले स्लाइड देखी थी, स्लाइड हमने जो देखी थी उसके अंदर वो दिखाया जा रहा था कि while we are implementing agile project management, we are not developing the documentations, rather we are developing the software itself, we are developing the product itself, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस करते रहते हैं, जो हम प्लान्स बनाते रहते हैं, ठीक है, उसको जो है ना अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिस्करेज करता है। एंड अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स कि आपके पास जो आपका जो फोकस है वो एग्जीक्यूशन के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए, बजाय आप जो है ना एक लंबी जो है ना उसके अंदर वो करते रहें, मतलब जो है ना वो आप करते रहें, ठीक है, बजाय आप उसको एक डॉक्यूमेंटेशन करते रहें। आपको जो फोकस होना चाहिए वो वर्किंग एग्जीक्यूशन साइड के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो वी विल इंटरप्रेट दिस वैल्यू एज दो comprehensive documentation is important but working software is more important than comprehensive documentation, ठीक है। तो हमारा जो फोकस है वो ज़्यादा जो है ना वो लेफ्ट साइड पे रहना चाहिए कि लाइक we need to develop the working software. Then third is जो कि कंस्ट्रक्शन में भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन और कस्टमर कोलैबोरेशन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे आप में से कुछ हजरात ने सवालात भी किए कि हमारा जो है ना कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो जाता है, वी हैव फिक्स कस्टमर फिक्स रिसोर्सेज एंड ऑल दिस थिंग्स, देन हाउ वी कैन डिलीवर वैल्यू एंड ऑल दिस। तो उसमें ये है कि आपने कस्टमर के साथ कोलैबोरेट करना है अवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। Most of the time होता ही है, based on my own experience, I've been working in UAE, in Middle East and in Pakistan as well as in the project management. So most of the time होता ही है basically कि आपकी जो अप्रोच होती है with the client is with the negotiation, कि जी हमारा स्कोप ये negotiate हुआ है, we will deliver this, ठीक है। But Agile says कि आपने कस्टमर के साथ as a partner काम करना है, you have to collaborate with the customer so that value delivery is ensured, ठीक है। So on agile project, contract negotiation is important, but it is more important to collaborate with the customer, ठीक है ना। This is the third value. And last but not the least, very important is this कि जो भी प्रोजेक्ट होता है हम उसका कोई ना कोई प्लान बनाते हैं, we make the plan, ठीक है। and most of the time होता यही है कि we keep on following the plan, even changes are there, changes are being requested or requirements necessitates that we need to change something in our project, तो हम उसके बावजूद भी ये करते रहते हैं, we keep on following the plan and we don't respond to the change. So there is a fourth agile value is this, that is following the plan is important, but whenever it is required to respond to change, you need to respond to change first, ठीक है। ये इसकी 4 वैल्यूज हैं। जब भी आप अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करेंगे, ये वैल्यू इसी तरह से है जैसे हमारी इक़दार होती है कि इनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। लाइक देयर इज़ नो कंप्रोमाइज़ ऑन इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शंस, उनका आपस में कोलैबोरेशन होना, एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस होना, कस्टमर कोलैबोरेशन के ऊपर फोकस होना, अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट की जा रही है तो उसको इम्प्लीमेंट करना, देयर इज़ नो कंप्रोमाइज़ ऑन इट, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली 4 वैल्यूज़। अब अगर आप अब इसको देखें, स्लाइड जो हमने डिस्कस की थी, अगर आप इसी को देखें तो इन्हीं 4 वैल्यूज़ के ऊपर हमारे पास जो है वो बेस्ड ऑन दीज 4 वैल्यूज़ हमारे पास जो है ना वो 12 प्रिंसिपल्स हैं जो इन्हीं वैल्यूज़ को फर्दर एलेबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्दर एलेबोरेटिंग, फॉर एग्जांपल, अच्छा इसमें आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो चीज़ें जो है ना वो सॉफ्टवेयर या आईटी साइड से मिल रही होंगी, मगर ऐसा नहीं है कि अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ नहीं हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर जिस तरह से बीम सॉफ्टवेयर आ गया, तो आप जब व्हेन यू आर यूजिंग बीम सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो है ना आपकी अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंटरनेशनली बहुत सी इंडस्ट्रीज के अंदर इंप्लीमेंट हो रही है। आई माई सेल्फ हैव बीन वर्किंग इंटरनेशनली एंड मल्टीनेशनल Amana Contracting and Steel Building based in Dubai, so they are implementing all this.
they are implementing BIM software, they are implementing agile project management in construction. ओके जी। अच्छा, ये मैं इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको मैं थोड़ा सा ना हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको जो है ना वो माइंड के अंदर चीज़ रह जाए, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल के अंदर की हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर। हमारे पास जो सबसे पहली जो चीज़ है, एक तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है थ्रू अर्ली एंड कंटिन्यूस डिलीवरी। सेकंड, वेलकमिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। जो हमारे पास सेकंड प्रिंसिपल है कि जो भी चेंजेस आ रही हैं उसको जो है ना हमने क्या करना है, वेलकम करनी है। देन हमने जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, हमने इसको फ्रीक्वेंटली डिलीवर करना है। फ्रीक्वेंटली मींस ऐसा नहीं है कि आप यू हैव स्टार्टेड डेवलपिंग सॉफ्टवेयर राइट इन द बिगिनिंग, या आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपने शुरू में इसको बनाते जा रहे हैं एंड यू हैवंट शोड दैट टू द क्लाइंट, यू डिडंट गेट द फीडबैक, आपने फीडबैक ली नहीं है और आपने इतना ज़्यादा काम कर लिया, एट द एंड ऑफ द डे यू शोड टू द क्लाइंट एंड क्लाइंट शोड द डिससैटिस्फैक्शन। ऐसा नहीं है। यू हैव टू डिलीवर प्रोजेक्ट इन इंक्रीमेंट्स। हमने पहले जो है ना वो स्लाइड पढ़ी थी, तो उसमें ये होगा कि बेसिकली अगर कोई भी चेंजेस हैं, क्लाइंट आपको सजेस्ट करेगा, यू विल इनकॉर्पोरेट दैट, ठीक है जी। बिजनेस पीपल एंड एमएस वर्क टुगेदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोलैबोरेशन वाली वैल्यू हमने पढ़ी कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि आपके पास जो है ना देयर इज अ गैप बिटवीन द टेक्निकल पीपल एंड द मैनेजमेंट पीपल एंड द बिजनेस पीपल। Agile project management discourages this as a principle on the principle basis, ठीक है ना। आपके पास जो HR जो जिस तरह से आपकी जो सेटिंग स्कीम बनाता है, जो कोलैबोरेशन स्कीम बनाता है, उसको इस तरह से बनाना चाहिए कि these people must collaborate with each other because business people are responsible for delivering value to the client, उनकी collaboration है, and technical people are developing it। तो इन दोनों के दरमियान अगर गल्फ ऑफ कम्युनिकेशन रह गया, देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन दीज टू, तो मे बी जो आपके बिजनेस पीपल हैं दे आर नेगोशिएटिंग समथिंग एल्स एंड टेक्निकल पीपल इज डेवलपिंग समथिंग एल्स। सो द कोलैबोरेशन बिटवीन द टू इज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थोड़ा सा जो है वो टीम मेंबर के ऊपर है कि बेसिकली आपने जो प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं, यू बिल्ड प्रोजेक्ट्स अगेंस्ट सम मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसमें आपको यही बताऊंगा कि when you are selecting the right team member for your project, तो आप एक ऐसा you will select the right motivated people that will tell you what to do, ठीक है ना, that will tell you what to do basically, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप एक lousy resources select करें, rather you need to have right HR matrix to select the right person for the right job, which is motivated, which is creative at that job, ठीक है ना, जो खुद बखुद ही वो काम करता है। तो आपने जब टीम मेंबर सेलेक्ट करने हैं प्रोजेक्ट टीम के लिए, तो उसके जो है ना दे शुड बी मोटिवेटेड। देन प्रोजेक्ट मैनेजर की ये रिक्वायरमेंट है, इज द रिस्पांसिबिलिटी कि ऐसी इन्वायरमेंट, ऐसी वर्क एथिक प्रोवाइड की जाए ताकि आपकी जो रिसोर्स हैं वो आपको मैक्सिमम क्रिएटिव आउटपुट दे सके, ठीक है ना। दिस इज द प्रिंसिपल। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल ये है कि जिस तरफ से अभी हम भी जो है ना ऑनलाइन जो है ना वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, अजाइल इसको थोड़ा सा डिस्करेज करता है। बेसिकली ये है कि जो फेस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड टीम मेंबर्स है, वो ये है कि इट इज़ फेस टू फेस कन्वर्सेशन। जितनी भी आपकी मीटिंग्स हों, दे शुड बी फेस टू फेस। जितनी आपकी फेस टू फेस कन्वर्सेशन होगी, उसमें ये होगा बेसिकली कि आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग सॉफ्टवेयर इज अ प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस। लाइक आप लेट्स सपोज अगर आप बिम यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो जो आपने 3D मॉडल बनाया है उसका और वो अपने क्लाइंट को शो किया है, दैट इज द प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना सिर्फ पेपर के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन करते रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज वेरी मच एग्जीक्यूशन फोकस्ड, कि आपने कोई चीज़, कोई इंक्रीमेंट, कोई प्रोटोटाइप डेवलप किया है, यू हैव शोन इट टू द क्लाइंट, they got the feedback, you improved it, continually improve it until it is accepted, ठीक है। So it's a very centric of that. Then agile processes promote sustainable development. So sponsor developers and users should be able to maintain constant pace. जो भी आपने वर्किंग करना है, एक आपने जो है ना वो constant pace से वर्किंग करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि sometime you will overwork and sometime you will less work, because when you more work तो आपका जो है ना वो work life balance जो है वो disturb होता है, and which translates to the सोशल एंड वर्किंग एंजाइटी, ठीक है।
तो उसमें जो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो है ना वो कंसिस्टेंट कांस्टेंट पेस के साथ काम करना है, ठीक है। जो मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट बताया था एक टाइम बॉक्सिंग का, कि देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम बॉक्स, इन दैट टाइम बॉक्स यू विल वर्क, जितना आपके पास काम होगा यू विल डू, एंड रेस्ट ऑफ द वर्क यू विल ट्रांसलेट इनटू द नेक्स्ट टाइम बॉक्स, ठीक है ना। आप उसको आगे जो है ना वो डेफर कर देंगे, ठीक है। यू विल नॉट ओवर वर्क, बिकॉज व्हेन यू ओवर वर्क तो उसमें जो है ना आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वहीं पे यूज होती है जहाँ पे आपने कोई नई चीज इनोवेशन लेकर आनी है, ठीक है ना। उसके लिए आपकी क्रिएटिविटी और आपकी जो वेल बीइंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कांस्टेंट पेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कंटिन्यूस अटेंशन टू टेक्निकल एक्सीलेंस एंड गुड डिजाइन एनहांसेस एजिलिटी, ठीक है। टेक्निकली जो है ना आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए, यू शुड बी वेरी मच क्लियर ऑन दैट। टेक्निकल एक्सीलेंस, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो प्रिंसिपल आर्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क इज एसेंशियल। अच्छा, ये थोड़ी सी इंग्लिश इसकी थोड़ी सी लिखी हुई है, वो ये है, अगर आप इसको सिंपल वर्डिंग में ट्रांसलेट करें वो यही है कि अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो मल्टीटास्किंग को बहुत ज्यादा डिस्करेज करती है, ठीक है ना। you will not do a lot of work in parallel, you just need to focus। आपने फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट में टीम अगर किसी एक चीज के ऊपर काम कर रही है तो दे आर जस्ट डूइंग ऑन दैट वर्क, it's not that you will be doing multitasking, it's also against the agile principles। then again team members से related है कि जो आपके पास टीम्स हैं वो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइक दे शुड इंस्ट्रक्ट देमसेल्व्स, ठीक है ना। उनको जो आउटवर्ड सपोर्ट है या जो मतलब जो सुपरविजन है वो कम से कम होनी चाहिए, दे शुड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है जो एचआर है उसका इट्स अ वेरी वाइटल रोल टू ब्रिंग टू डेवलप द सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट इज रेगुलर टीम शुड रिफ्लेक्ट ऑन हाउ टू बिकम द मोर इफेक्टिव, ठीक है। आप अजाइल प्रोजेक्ट के अंदर क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव द रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग्स। आपने एक आइटरेशन की, यू हैव डिलीवर्ड आपने जो है वो उसको डिलीवर किया, ठीक है। एक इंक्रीमेंट डेवलप किया, जो डिलीवर्ड इट टू द क्लाइंट, बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स फीडबैक आपने उसको इम्प्रूव करना है। एक आपकी मीटिंग जो है वो होगी क्लाइंट के साथ, एक आपकी इंटरनल मीटिंग होगी जो कि रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होगी, रिफ्लेक्टिव मीटिंग होगी, in which you will reflect के what were the mistakes that you done in the previous iteration, और उसको जो है ना नेक्स्ट टाइम में कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना आई वेरी क्विकली गॉन थ्रू ऑल ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। एक आपके जो 12 के प्रिंसिपल्स हैं उनको जो है ना मैंने थोड़ा सा कवर किए। इसके अंदर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। बेसिकली जो जहाँ पे भी अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट होती है वहाँ पे इन वैल्यूज को और प्रिंसिपल्स को एडहेयर किया जाता है, देयर इज नो कंप्रोमाइज इन इट, ठीक है ना। यू हैव टू सेटिस्फाई द कस्टमर, चेंजेस को वेलकम करना है, इंक्रीमेंट्स के अंदर प्रोडक्ट को डेवलप करना है, ठीक है। देन देयर शुड बी कोलैबोरेशन बिटवीन टेक्निकल एंड बिजनेस पीपल, ठीक है। टीम शुड बी सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एंड दे शुड बी मोटिवेटेड पीपल। जब भी अगर आप इफ इट इज पॉसिबल, द बेस्ट पॉसिबल थिंग इज कि आप जो है ना फेस टू फेस कन्वर्सेशन करें, मीटिंग्स करें, ठीक है। देन in agile project management there is focus on doing things, on execution rather than planning and putting a lot of efforts on paperwork, no, आपने जो है वो क्या करना है, चीज़ों को डेवलप करना उसके लिए, ठीक है। देन आपने जो प्रिंसिपल है जो आपको बता दी है agile project management, वो ये है कि बेसिकली you have to maintain very good work life balance and जो आपका जो वर्किंग एथिक है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट जो है वो बेसिकली द नेक्स्ट थिंग इज के आप नेक्स्ट थिंग इज कि आपने जो है ना वो एक कांस्टेंट पेस के साथ वर्क करना है, यू डोंट हैव टू ओवर वर्क और लेस वर्क, एक कांस्टेंट नंबर ऑफ आवर्स जो है जो आपने वर्क करना उसके ऊपर, ठीक है। टेक्निकल एक्सीलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मल्टीटास्किंग इज डिस्करेज्ड बिकॉज इट इम्पैक्ट्स द क्रिएटिविटी। एंड देन team should be self-organizing and there should be retrospective meetings after some times, means after 15 days or 30 days there should be retrospective meetings कि जो आप project deliver कर रहे हैं उसके अंदर what are the lessons learned and how you can incorporate those lessons learned into your project working, into your personality, and how you can become the how you can follow the principles of continual improvement, ठीक है। तो ये आपके जो है ना वो 12 इसके principles हैं which are related to the agile। और इन सब प्रिंसिपल्स का कहीं ना कहीं जो है ना वो रिलेशनशिप है उसके साथ, वैल्यूज के साथ। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन वैल्यूज।
ओके जी, अब हमने अजाइल की वैल्यूज डिस्कस कर ली, वी डिस्कस प्रिंसिपल्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स। ठीक है ना, मेथड्स कि अजाइल के अंदर मेथड्स कौन से हैं, व्हाट आर द मेथड्स यूजिंग व्हिच वी कैन इंप्लीमेंट दीज वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स एंड हाउ वी कैन ब्रिंग वैल्यू। ओके, ये थर्ड है हमारे पास। तो अजाइल के अंदर हमारे पास बहुत सी डिफरेंट जो है ना वो मेथडोलॉजीज है। ठीक है, अगर आप इस स्लाइड को देखें ऑन द राइट हैंड साइड, अगर आप ये देखेंगे कि सबसे बेसिक जो आपके पास चीज़ है वो है कि आप मोर अडेप्टिव, जिस तरह से आपको समझ आ रही है, जो भी आपको समझ आ रही है आप उस हिसाब से जो है वो वर्किंग करते जाएं। ठीक है, तो दिस इज नॉन एज एड हॉक और डू वट एवर यू वांट टू डू। ठीक है जी, एक तो आपके पास ये तरीके। सेकेंडली, जो उसके बाद जो एक प्रोसेस आता है अजाइल का, दैट इज कैन बैन। कैन बैन एक बेसिकली जापानीज टर्म है। ठीक है, इसका मतलब होता है बेसिकली बोर्ड, एक बोर्ड होता है, ठीक है, वाइट बोर्ड या कोई भी इवन सॉफ्टवेयर के अंदर भी कैन बैन इंप्लीमेंट होता है। लाइक देयर इज अ सॉफ्टवेयर, जिस तरह से आपकी एक टू डू लिस्ट होती है, ठीक है, उसके अंदर आप जो है ना उसको इट्स अ बोर्ड लाइक दैट। ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं 3 9, ये बेसिकली नंबर ऑफ डिफरेंट रूल्स टू फॉलो। ठीक है ना, मतलब जितना ये नंबर कम है इतना उसका प्रोसेस वेट कम है, इतना आप उसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब अगर आपने अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करनी है तो सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि आप कैन बैन से स्टार्ट करें, क्योंकि उसका प्रोसेस वेट बहुत कम है। इट इज़ सिंपल टू इम्प्लीमेंट, देयर आर ओनली 3 थिंग्स दैट यू नीड टू केयर। ठीक है ना, सिर्फ 3 चीज़ों की आपको जो है ना वो केयर करनी पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्क्रम। ठीक है, स्क्रम बहुत ही इट्स वेरी फेमस अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजी, जो कि आईटी प्रोजेक्ट के अंदर और आपकी जो सिविल की जो प्रोजेक्ट है, अगर आपने लेट्स सपोज बिम को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो स्क्रम वहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, कैन बैन मोस्टली इज बीइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग साइड के ऊपर जो है ना वो कैन बैन अजाइल मेथडोलॉजी जो है ना वो यूज हो रही है। ठीक है, तो हम ब्रीफली थोड़ा सा स्क्रम को और कैन बैन को डिस्कस करेंगे इन दिस शॉर्ट सन। वैसे तो इनके ऊपर जो है ना देयर कैन बी कंप्लीट सेशंस ऑन स्क्रम एंड कैन बैन। तो हम जो है ना सबसे पहले जो है ना इनको कैन बैन का एंड स्क्रम को जो है ना मैं थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करूँगा, ताकि जो है ना वो आपको इसकी लाइक एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और अगर आप लेट्स सपोज इसको जैसे ही आप एक यानी कि वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मोस्टली अगर आप सिविल और कंस्ट्रक्शंस की अगर आपके प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो यू शुड हैव समथिंग कि आप उसको जो है ना वो कैसे फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट वो आपको पता हो। ओके जी, अच्छा, हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्क्रम को। ठीक है ना, स्क्रम बेसिकली स्क्रम इज द मेथडोलॉजी, लाइक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है ना, स्क्रम इज वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है, इसके अंदर कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, देयर विल बी सम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिस तरह से आप देख रहे हैं। लाइक ऑफ कोर्स अगर आपने कुछ करना है तो उसके अंदर आपके पास कुछ रिसोर्सेज होंगे। तो हमारे पास 3 किस्म के रिसोर्सेज होंगे। एक जो रिसोर्स है वो है प्रोडक्ट ओनर, एक आपके पास टीम है जिसको आप प्रोजेक्ट टीम कह सकते हैं, और एक आपके पास स्क्रम मास्टर है, या जिसको हम कन्वेंशनल जबान में प्रोजेक्ट मैनेजर बोलते हैं। ठीक है जी, जिसको हम प्रोजेक्ट मैनेजर बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पास, उसको हम स्क्रम मास्टर जो है ना यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है ना, विल कॉल्ड एज स्क्रम मास्टर। ओके, थैंक यू। अच्छा, हम
अच्छा, ये हमारे पास जो टीम के रोल्स होंगे, अगर हमने स्क्रम को इम्प्लीमेंट करना है तो हमारे पास 3 किस्म के जो है ना वो होने चाहिए रोल्स, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास एक रोल होना चाहिए वो एक प्रोडक्ट ओनर का रोल होना चाहिए। प्रोडक्ट ओनर इज सिमिलर टू पर्सन जो कि बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव होता है। जिस तरह से आपके पास बिजनेस के लोग होते हैं, जो जिस तरह से कन्वेंशनली आपका जो सेल्स का डिपार्टमेंट है, जो बिडिंग का डिपार्टमेंट है, जो आपके क्लाइंट के साथ जो है ना, क्लाइंट के साथ रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है ना, उसको हम अजाइल में प्रोडक्ट ओनर बोलते हैं, ठीक है। टीम जो आपके पास है वो बेसिकली एग्जीक्यूशन की टीम है जो कि आपकी प्रोडक्ट डेवलप कर रही है। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन में यूजिंग BIM, द टीम इज द वन हु इज डेवलपिंग 3D कंस्ट्रक्शन मॉडल्स इन BIM सॉफ्टवेयर, ठीक है। स्क्रम मास्टर इज द पर्सन जो कि बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसको हम कन्वेंशनल टर्म्स में बोलते हैं, इट्स अ स्क्रम मास्टर इज बेसिकली अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, जिसने इंश्योर करना है कि जो स्क्रम है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले टीम रोल्स हैं। उसके बाद आफ्टर दिस हमारे पास जो है ना कुछ आर्टिफैक्ट्स होते हैं इसके अंदर, लाइक प्रोडक्ट बैकलॉग्स। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आप प्लानिंग करते हैं, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बनाते हैं बेसिकली, कि टू डू लिस्ट या द एक्टिविटीज जो आपने मुख्तलिफ किस्म की जो एक्टिविटीज जो है ना वो आपने करनी है, ठीक है, उसको यहाँ पे आप बोलेंगे प्रोडक्ट बैकलॉग। बेसिकली द स्कोप ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होगा, पूरे के पूरे जो आपकी कंप्लीट जो प्रोजेक्ट का स्कोप होगा, ठीक है, जितना भी आपका प्रोजेक्ट का स्कोप है, ठीक है, वो सारे का सारा आपका किसके अंदर होगा, प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर, ठीक है ना। जिस तरह से आप बोलते हैं ना, लाइक हमारे पास WBS है, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बैकलॉग होता है जिसके अंदर आपकी पूरी टू डू लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स पूरी प्रोडक्ट की, पूरे प्रोजेक्ट की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, बेसिकली द नेक्स्ट थिंग इज आपके पास जो है वो है आपके पास स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग है, ठीक है। जो हम आइट्रेशन की बात कर रहे थे कि चीज़ें जो है ना वो आइट्रेशन के अंदर चलती हैं, तो उसको हम बेसिकली स्प्रिंट बोलते हैं। वी कॉल इट अ स्प्रिंट और आइट्रेशन। स्प्रिंट का मतलब यह है कि एक आइट्रेशन में टीम बैठ के क्या काम करेगी, ठीक है, और उसका फिर एक स्प्रिंट का बैकलॉग होगा कि उस स्पेसिफिक स्प्रिंट के अंदर व्हाट आर द एक्टिविटीज टू बी डन। एक आपके पास प्रोडक्ट बैकलॉग है जो कि पूरे प्रोजेक्ट का है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर प्रोजेक्ट, ठीक है ना, द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दैट नीड्स टू बी डन फॉर इन ऑर्डर टू डिलीवर द एंटायर प्रोजेक्ट। बट जैसे मैंने आपको बताया कि हम वर्क जो है वो इंक्रीमेंट्स के अंदर करते हैं, तो हमने सारे का सारा जो है वो प्रोडक्ट बैकलॉग इंप्लीमेंट नहीं करना। हमने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट बैकलॉग की प्रायोरिटाइजेशन करनी है कि क्लाइंट को सबसे पहले कौन सा फीचर चाहिए, विच फीचर क्लाइंट इज रिक्वेस्टेड, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आप BIM को ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो BIM के अंदर फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले क्लाइंट आपको ये कहता है कि आपका जो है ना वो ज़्यादातर फोकस जो है वो उसके ऊपर होना चाहिए किसी एक, तो हमारे पास मैंडेटरी डिपेंडेंसीज होती हैं, लाइक, ठीक है, तो आपको क्लाइंट ये कहता है कि किसी स्पेसिफिक फीचर को आप सबसे पहले फोकस कर लें, ठीक है। तो जब आप उसको सबसे पहले फोकस करेंगे तो वो प्रायोरिटाइज हो जाएगा, तो टीम सबसे पहले उसी प्रायोरिटाइज रिक्वेस्ट के ऊपर वर्क करेगी, ठीक है ना। तो उसकी सबसे पहले प्लानिंग मीटिंग होगी और फिर उसका बैकलॉग बनेगा, ठीक है, कि उस फीचर को डिलीवर करने के लिए व्हाट आर द थिंग्स दैट दे नीड टू डू। वंस दे हैव डेवलप्ड द स्प्रिंट बैकलॉग, तो फिर 1 to 4 वीक की आपकी एक स्प्रिंट होती है। इसकी ड्यूरेशन इट्स नॉट मोर देन 4 वीक्स और मंथ, ठीक है ना। जितनी कम होगी ड्यूरेशन 2 वीक्स, अगर 2 वीक्स है तो ये आइडियल है, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 4 वीक्स, बिकॉज अजाइल बिलीव्स कि अगर आप इसको एक्सपैंड करते हैं तो आपके रिसोर्सेज जो है ना वो ज़्यादा होने लग जाते हैं, ठीक है। सो इट शुड नॉट बी मोर देन 4 वीक्स, ठीक है। आपने जो प्रोडक्ट बैकलॉग में जो आपने प्रायोरिटाइजेशन की, जो आपने टॉप का फीचर निकाला, उस फीचर की आपने प्लानिंग की कि उस फीचर को आप कैसे डिलीवर करेंगे, कैसे आप उसको इंक्रीमेंट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे आप उसको इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसको एक स्प्रिंट हुई, एक आइट्रेशन हुई, और उस आइट्रेशन में पूरी टीम दे जस्ट वर्क ऑन दैट सिंगल फीचर, एंटायर टीम जस्ट वर्क ऑन दैट सिंगल फीचर, ठीक है ना। लाइक दे विल नॉट डू अ लॉट ऑफ वर्क, जिस तरह से हमने पढ़ा कि मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे, दे विल नॉट बी डेवलपिंग simultaneously multiple features, ऐसा नहीं है। they will just develop one single feature which is
of the topmost priority to the client. ठीक है ना. अब फॉर एग्जांपल पूरा प्रोजेक्ट है, आप वर्किंग तो आपने स्टार्ट कर दी है, मगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो टॉप फीचर, अगर आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, आप प्रोजेक्ट के ऊपर तो काम कर रहे हैं मगर क्लाइंट को उसकी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है. ठीक है, तो हमने सबसे पहले अपने बैकलॉग को प्रायोरिटाइज करना है. व्हाट इज द फर्स्ट फीचर व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द क्लाइंट. ठीक है, उसकी हमने प्लानिंग कर ली, एंड आफ्टर प्लानिंग entire team will work on that single feature, and after the sprint जो आपका finished work होगा, ठीक है, the finished work you will show that to the client. ये हमने एक डेमो, ये हमने एक इंक्रीमेंट बिल्ड किया है. ठीक है, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बिम में आप वो स्पेसिफिक फीचर जो है वो क्लाइंट को शो करेंगे कि दिस इज व्हाट वी हैव बिल्ट. ठीक है, उस वो जो आपने एक फीचर बिल्ड किया है, क्लाइंट विल सी इट. ठीक है, आपका जो कस्टमर है विल सी इट, वो आपको फीडबैक देगा, एंड बेस्ड ऑन फीडबैक यू विल इम्प्रूव दैट फीचर, या आप नेक्स्ट फीचर के ऊपर चले जाएंगे जो आपको क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा. सो दिस इज द आइटरेटिव प्रोसेस. ठीक है ना. अच्छा, अब इसके अंदर हमने जो है ना एक छोटी सी चीज जो है ना वो ऊपर आपको ये नजर आ रही होगी, एक तो ये बड़ा आपको सर्कल नजर आ रहा है. ठीक है, जो है आपके पास एक लाइक यू हैव दिस, एक तो आपको ये नजर आ रही है स्प्रिंट. ठीक है, मैं इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट यूज कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आए. एक तो आपके पास है ये स्प्रिंट, ठीक है ना, जिसकी ड्यूरेशन 1 to 4 वीक है. एक आपके पास डेली स्क्रम है. ठीक है, डेली स्क्रम बेसिकली ये होता है कि इट्स अ टाइम बॉक्स 15 मिनट्स मीटिंग. ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी डे. ठीक है ना, आपका स्क्रम मास्टर टीम एंड प्रोडक्ट ओनर दे डू वेरी क्विक मीटिंग. ठीक है, उस क्विक मीटिंग में ये क्या करते हैं, बेसिकली दे डिस्कस एनी प्रॉब्लम्स, एनी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, कोई इश्यूज. अगर कोई इशू आ रहा है आपके डेवलपमेंट के अंदर, आप जो प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो क्विकली डिस्कस की जाती हैं और उसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन को सॉर्ट आउट किया जाता है, एंड इट इज़ क्विकली इम्प्लीमेंटेड. सो इट्स अ Sir, are you online at the moment, sir? Because we can't see you appearing on screen, sir. So I request you to please unmute yourself. Okay, ma'am. Actually, it's when it is muted, so it doesn't allow me to mute myself. No problem, Just sir. ask to. Okay. So we were discussing about the Scrum basically. Okay, we were discussing about the Scrum, and we're talking about the daily Scrum. ठीक है, तो daily Scrum में basically यही है कि if the product owner, team, and Scrum master, they will join together, they will meet together, and they will discuss any potential problems toward the execution of the increment, if there is any. So they will discuss the problems, and solution will be suggested by mostly by the Scrum master, and that solution will be implemented. And then, like, in order to ensure the smooth execution,
this is a daily scrum is done on the daily basis. So this is basically a scrum. अगर आप अब इसकी वर्किंग को देखें तो the way you are working now, it would be very much different from this, but this is proven to be very effective way of doing work. ये जो आपका जो मेथड है, ये बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना वो इसको इम्प्लीमेंट करती हैं, एंड देयर आर स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस जस्ट फॉर दिस स्क्रम प्रोसेस. ठीक है, तो बिकॉज आई हैव सीन, आई हैव ऑब्जर्व कि अभी आपका जो सिर्फ जो इस्लामाबाद ऑफिस है नेस्पाक का, ओनली दे आर इम्प्लीमेंटिंग द BIM. सो जैसे अगर आपकी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा है फॉर एग्जांपल, अंडर दैट केस व्हेनेवर यू इम्प्लीमेंट द BIM बिजनेस इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, तो with that you can use the scrum process and you can improve the productivity and you can deliver value to the clients. ठीक है जी, ओके जी. इसके बाद जो हमारे पास जो एक लास्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है कैनबैन का. जिस तरह से आपको बताया था कि कैनबैन का जो वेट है वो बहुत कम है एंड इट इज़ वेरी सिंपली टू इम्प्लीमेंट. ठीक है ना, आप इफ़ यू गो, जो टोयोटा प्रोडक्शन है, बेसिकली कैनबैन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम्स. ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में इसको जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था. ठीक है, ये उसकी बहुत एक सिंपलेस्ट फॉर्म है कि आपके पास जो भी वर्क है, यू जस्ट डिवाइड इनटू द थ्री थिंग्स. ठीक है ना, एक आपके पास टू डू है, द वर्क दैट यू हैव टू डू, एंड द नेक्स्ट द वर्क ऑन विच यू आर करंटली टीम इज करंटली डूइंग द वर्क, एंड थर्ड इज द वर्क विच हैज बीन कंप्लीटेड. ठीक है, तो प्रिंसिपल ये है कि बेसिकली जब तक एग्जिस्टिंग वर्क हो रहा है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, यू विल नॉट पुल द मोर वर्क फ्रॉम टू डू लिस्ट. ठीक है, सो इट्स अ वेरी सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैनबैन. इसके अंदर मैंने ज़्यादा कोई भी कम्प्लेक्सिटी नहीं ऐड की, जस्ट टू शो यू द बेसिक आइडिया कि बेसिकली कैनबैन एक बोर्ड होता है एंड इट मॉनिटर्स ऑल द वर्क दैट इज येट टू बी डन, वर्क विच इज करंटली बीइंग डन एंड वर्क विच हैज बीन कंप्लीटेड. तो जब आप वर्क को इस तरह से तीन हिस्सों में सेग्रीगेट कर लेते हैं, तो इट प्रोवाइड्स यू एंड इनहेंस्ड फोकस्ड ऑन डूइंग थिंग्स. ठीक है ना, वैसे तो इसके अंदर काफ़ी जो है ना वो डिटेल्स आ जाती हैं जब आप इसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में बात करते हैं, so it becomes more and more complex, but here it is like this, right? So this was almost a basic introduction of the agile project management. Basically we have tried to link with your existing work. ठीक है, I hope कि आपके पास कुछ IT के भी प्रोजेक्ट्स होते होंगे, ठीक है ना, उसके अंदर ये चीज़ ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो सकती है. बट if you have implemented the BIM business information modeling, या जिस तरह से देयर वाज वन क्वेश्चन कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं और स्कोप हमारे पास रियलिस्टिक है, तो सम टाइम ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपके पास जो स्कोप जो है वो क्लियर नहीं होता, देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी. तो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस बेसिकली जो है वो आप क्या करते हैं, यू कैन इम्प्लीमेंट द अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यू कैन जनरेट द रिक्वायरमेंट्स एंड यू कैन डिलीवर द वैल्यू. ठीक है जी, सो इट वाज द ब्रीफ प्रेजेंटेशन. इसमें अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, ये जो फीडबैक है, तो वो आप काइंडली पूछ सकते हैं. I would request the questions. Well, so there are some queries I should share with you on the chat box. That there's one issue from Osama, that project management is not being implemented in many civil projects in Pakistan. So there is any benefit of pursuing PMP certification while managing the projects? Okay, ma'am, very good. Basically, Osama का ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रेफरेंस से होगा कि अजाइल जो है वो कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, तो देन व्हाई डू वी नीड PMP. अच्छा, बेसिकली जो आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, ये इट इज़ कंटिन्यूसली बीइंग अपडेटेड एंड बेस्ड ऑन द सर्वे जो है ना किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड कि व्हाट आर द न्यू स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू डिलीवर द प्रोजेक्ट्स. ठीक है, अब जिस तरह से आपने ही बताया था, उसामा ने शायद चैट बॉक्स में लिखा कि हमारे पास जो BIM है, जो बिजनेस इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन इस्लामाबाद ऑफिस एंड मे बी इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अदर ऑफिसेज एज वेल. सो उसमें बेसिकली ये है कि लाइक जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, तो आपकी जो अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इट विल बिकम इनएविटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एज वेल. सो दैट इज़ वाई
Project Management Institute has included agile project management into the PMBOK itself. जो उसकी body of knowledge है उसके अंदर उसको जो है उसके अंदर उसको incorporate कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है ना उसका benefit नहीं होगा। While doing PMP certification, you will be learning both methodologies, waterfall project management as well as agile project management, right? So जब आप agile project management और दोनों को जो आप implement करेंगे, so being an experienced project manager, you will be able to select the right methodology के किस situation के अंदर कौन सी methodology जो है ना वो use करनी है। अब अगर आपको सिर्फ फॉर एग्जांपल वाटरफॉल का मेथड का पता है और आपकी कंपनी के अंदर बिम आ गया, ठीक है, which requires you to implement project management using agile project management. So if you are PMP certified and you know about the agile project management, तो आप जो है ना easily pick and choose कर सकते हैं what is the right methodology. So I would say strongly suggest that you all, most of all, you must go for the PMP certification, and it is very much related to your industry, because I believe that NESPARC is one of the leading engineering and project management company in Pakistan. So and I also believe that NESPARC welcome innovation and new technologies. So उसके लिए जो है ना ये आपकी requirement है, and I strongly suggest कि you must go for PMP certification, and it will give you a lot of benefit. Sir, another query we have that can the agile project management be related to building of a private house, as we don't know the scope in the beginning and the product's delivery vary with the change request by employer, that is finishing, interior, etc. मैम इसके अंदर ये जो आपका क्वेश्चन है, बेसिकली इस क्वेश्चन को मैंने रिप्लाई किया था, मैं उसको थोड़ा सा मजीद जो वो डिटेल में भी रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट मैम आई एम जस्ट शेयरिंग screen for my LinkedIn profile, so if somebody wants to connect with me, I would like to connect for the networking as well. Basically, my screen is visible or not? Yes, it's completely fine, sir. It's there on the screen. अच्छा मैम, ओके मैम, जो आपने बेसिकली ये क्वेश्चन किया है कि लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ होम का स्कोप हमें शुरू में पता नहीं होता, इसका मैंने ऑलरेडी एक रिप्लाई किया था। बेसिकली जो होम कंस्ट्रक्शन है, इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड वी आर नॉट बिल्डिंग होम्स फॉर द फर्स्ट टाइम कि हमें जो है ना इतनी ज़्यादा एक अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो इतनी एफर्ट सजेस्ट कर रहा है वो हमें करनी पड़े, ठीक है। वी आर नॉट डेवलपिंग होम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए हमें अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। वी नो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ना उसकी एक बेस बनाएंगे, ठीक है, लाइक देन वी विल रेज द वी विल डू द उसकी जो है ना वो बेसिकली एक्सकवेशन होगी, फिर लीन होगी, उसके बाद जो है ना उसकी जो है ना वो मेशनरी वर्क्स हैं, फिर उसके बाद उसके जो है वो इंटीरियर है। तो हमें होम कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ का सीक्वेंसिंग है या स्कोप है वो बड़ी अच्छी तरह से पता है। तो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस वी विल नॉट बी यूजिंग अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली होता है कि आपका जो प्रोसेस वेट है वो बहुत लाइट होना चाहिए। मतलब आप ऐसा ना हो कि आप प्रोसेस को इतना कॉम्प्लेक्स कर दें कि उसको फॉलो करना मुश्किल हो जाए। Most of the time, based on my experience, because I've been working in Middle East as well as in Pakistan, and I've been delivering consultancy, project management consultancy in Australia as well. So based on my experience, होता इस तरह से है कि some companies forcefully implement project management practices, जो कि they are not understood by the team, they are not understood by the C-level management. तो उसकी वजह से जो है ना एक कम्युनिकेशन गैप बन जाता है between the higher management and the execution team. तो हमने जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसको हमने सिंपल रखना है, राइट, उसको हमने बिल्कुल सिंपल रखना है ताकि हम उसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सके। तो जो होम कंस्ट्रक्शन है उसको हम सिंपली यूजिंग वाटरफॉल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसका हम जो है ना गैंट चार्ट बना सकते हैं, एक्टिविटी सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटी स्टार्ट विद दिस और उसके साथ जो है ना हम उसको डिलीवर कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। तो उस केस में आई डोंट थिंक कि हमें जो है ना अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप कोई नया टाइप का होम बना रहे हैं विच इज़ नॉट देयर बिफोर, लाइक यू आर डेवलपिंग सम स्मार्ट होम और यू आर यूजिंग सम इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है, उसके लिए आपको बहुत सी एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ेगी, आपको बहुत सी मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, रिक्वायरमेंट्स जनरेट करनी पड़ेंगी, एंड इट्स अ कम्प्लीटली इनोवेटिव होम।
तो उस केस में आप अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को यूज करेंगे। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि कन्वेंशनल होम के लिए जो है ना वो आप अजाइल को यूज करें। And so there is a last suggestion, a request as well from our participant, that if you feel feasible and you feel convenient, that if we can schedule the next webinar training at your end, particularly on PMP exam preparation. Would you be yes. available for us, for the guidance our participants would like to have from you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure. Basically, जो हमारे पास जो PMP certification होती है, मैम, अभी recently I'm delivering updated trainings in NUST University, National University of Science and Technology, and That's DEFA International, and there are updated course outlines by the Project Management Institute. तो हम उसी के मुताबिक है ना वो trainings deliver कर रहे हैं. So if you would request me, of course I would love to share my expertise with that. But उसमें मैम suggestion ये है कि basically उसमें ना आप in-house PMP की training arrange करें. In-house PMP की training arrange करें ताकि उसकी जो है end-to-end training deliver करें और उसमें हमारी जो training की quality है वो भी improve होगी और जो interaction होता है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा. ठीक है मैम. तो अगर उसके लिए अगर आप एक brief seminar let's suppose अगर आप रखना चाहें ऐसे ही 1.5 hours का, that I would also love to deliver. It would be great honor for me to add value to the very competent engineers at very prestigious organization like Definitely, NESPA. sir, definitely. We surely would be pleased to have the collaboration with you in terms of these PMP examinations and preparation. But because of all these COVID times and the times that we are facing right now, that was the main specific reason that we had to initiate these webinar series. Just not to stop or not to taking the trainings on hold under these circumstances. So that was the main reason to initiate the webinar series. But definitely, sir, in future we will be taking the guidance from you, and particularly related to the PMP and the certifications and everything. Sir, thank you so much for the time. Thank you so much for transforming your knowledge and sharing your things and your expertise with us. And I am grateful to the participants as well who have been enthusiastic and who have been we have been showing the spirit, raising their questions and queries, and gaining the maximum information from these trainers. And sir, I'll be sharing the feedback as well as the trainer certificate with you, inshallah, in a couple of weeks. And I asked my participants if they feel to have the slides and everything, just let me know, just email me or text me on 568, my extension number. And I'll be sharing the slides, keeping in view with Noman Arshad Saab, if he can share the slides with us. And definitely I'll be forwarding all the things to the participants. Yes, ma'am. Thank you very much for giving me an opportunity and on this prestigious platform. And I'm really sorry for the inconvenience in between because of the internet issue. So because when there I is hope that when there is technology, definitely we have to come across with the glitches as well, and with the technical faults as well. So that's something not related to the human errors. These are all technical faults we have to face in all these webinars during these online sessions. Thank you so much for the time, sir. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, and we'll surely be in touch with you for the slides and everything. Thank you, sir. Okay, and thank you. One last thing, I've shared my LinkedIn profile link in the chat box. So it's visible, sir. It's visible, and participants, our engineers may approach to you. They would like to have their more queries. Definitely they'll be contacting you directly. Yes, sure. Or they can the participants may contact me directly for the number of Noman Arshad Saab. We are there to help you, assist you, and guide you in all aspects. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much, and Allah Hafiz from our side.